स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द क्वीन ऑफ साइंस में। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू चैप्टर ऑफ आवर क्लास 9th मैथमेटिक्स. This is lesson number 3 and name of the lesson is what? Coordinate geometry. Okay, so in class 8th you know how we plot the coordinates, but in class 8th you were get a very little bit information, but now in class 9th you are going to get a very deep discussion related to the coordinate geometry. This is a new type of the mathematics. Actually there are different branches of the mathematics. In all the branches, coordinate is one of the most favorite branch. Okay, very interesting, very conceptual and very independent branch is this. So we are going to discuss here first thing, that is Cartesian system. Before I told you about the Cartesian system, I want to remind you that you know the one thing that is known as number system. Okay, in the number system you have one line, in which middle point is represented as 0. When you move the left side it will be positive values 1 2 3 4 and so on, and when you move the right side it will give you negative values -1 -2 -3 and so on. Okay, because there are only one line and this line represent the numbers, all the real numbers. That's why that thing is a number system. Here we are also going to deal with the number system, but here we have two lines. Okay, so in the Cartesian system the thing that written is a Cartesian system have contained too many things which are as follows. कार्टेशियन सिस्टम में बहुत सारी जो चीज़ें हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम कार्टेशियन सिस्टम की बात करेंगे और सब कुछ इसी कार्टेशियन सिस्टम में है. सो वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द कार्टेशियन सिस्टम. In all the things, first thing is a Cartesian plane. You know about the plane. I am not talking about the aeroplane. सभी ने सुना होगा एरोप्लेन, है ना, जिस पे बैठ के उड़ते हैं. बहुत से लोग उड़े होंगे, बहुत से लोग नहीं भी उड़े होंगे. बहुत से लोग मतलब ट्रेवल किए होंगे, बहुत से लोग ट्रेवल नहीं किए होंगे. सो कार्टेशियन प्लेन कैसे फॉर्म होता है, क्या होता है, ये जानना हमारे लिए सबसे पहले ज़रूरी है. जैसे ये आपको जो पेज दिख रहा है, दिस पेज इज अ प्लेन पेपर एंड इफ वी ड्रॉ टू परपेंडिकुलर लाइन इन एनी प्लेन, then that plane is known as the Cartesian plane. I think it is clear to you. अगर हम किसी प्लेन पेपर पे दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दें तो then this thing is becomes Cartesian plane. This line is x o x dash. This is our horizontal line, or we also call this is x-axis, and this is y o
y dash. This is our vertical line and we also called it y axis. Okay, so Cartesian plane is a plane which have two perpendicular lines, namely xo x dash and yo y dash. Xo x dash is called x axis as well as horizontal line. Yo y dash is called y axis as well as vertical line. Okay, now here two main things is that both axes have two directions. दोनों जो एक्सिस हैं, जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इनके पास दो डायरेक्शंस हैं. ये जो पॉइंट O दिख रहा है, O से अगर हम x की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर्स पॉजिटिव हैं, सो दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन. और O से हम x डैश की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर्स हमारे क्या हैं, नेगेटिव हैं, सो दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन. एज वेल एज हम O से y की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन है, और O से y डैश की तरफ हमारा निगेटिव डायरेक्शन है. सो दिस थिंग इज रिटन एज OX and OY are the positive directions, OX dash and OY dash are the negative directions. Okay, ये जिस पॉइंट को हम बार बार O कह रहे हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पे x डैश वाली लाइन, y डैश वाली लाइन, मतलब x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों आकर के क्या की हैं, इंटरसेक्ट की हैं. दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं. वेयर बोथ परपेंडिकुलर लाइन मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर O. क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट अवर द कार्टेशियन प्लेन एंड ओरिजिन. नाउ हियर it is very clear that when we draw these two lines, this paper is divided in 4 parts, 1 2 3 4. So some specific name is there for these 4 parts. Okay, we are going to discuss about these specific names. Okay, and these specific names are quadrants. These specific names are quadrants. जब ये दो लाइंस आपने ड्रॉ की तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इनको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं. ये जो चारों पार्ट्स हैं, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ पे आया आपका, x और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शंस के बीच का पोर्शन, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन और y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के बीच में सेकेंड क्वाड्रेंट. x एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन और y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट. x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन एंड y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन के बीच में फोर्थ क्वाड्रेंट. Our quadrants are working as anti-clockwise direction. आपकी वॉच इस डायरेक्शन में मूव करती है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. Here the thing is written, quadrants are formed when both lines divide a plane into 4 parts, that is there are total 4 quadrants. Okay, first quadrant is in between OX and OY. Second quadrant is in between OX dash and OY. Third quadrant is in between OX dash and OY dash, and fourth quadrant is in between the OX and OY dash. It is clear? क्वाड्रेंट की बातें क्लियर हो गई. अब जो ये कार्टेशियन प्लेन है, दिस कार्टेशियन प्लेन इज ऑल्सो नोन एज द कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन. एक्स वाई यहाँ पे देखिए दो डायमेंशंस बन रहे हैं, एक एक्स और एक वाई. सो दिस थिंग इज 2D प्लेन ऑल्सो, इसे हम लोग 2D प्लेन भी कहते हैं. ठीक है, और ये जो एक्स और वाई एक्सिस हैं, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते
क्लियर। एंड जो पॉइंट्स हम लोग अब यहाँ पे लोकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, उन पॉइंट्स में ऑर्डर्ड पेयर्स बनते हैं। एक वैल्यू एक्स एक्सिस की उसमें रहती है और एक वैल्यू हमेशा वाई एक्सिस की, क्योंकि ये पूरा प्लेन आपका एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू फॉर्म हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमेशा एक वैल्यू एक्स एक्सिस की मिलेगी आपको और एक वैल्यू किसकी मिलेगी, वाई एक्सिस की मिलेगी। आई थिंक ये बात मेरी आपको क्लियर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, दिख रहा है, पहले x आएगा फिर y आएगा। क्लास 8th में आपको फिलहाल ये डिस्कशन ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसलिए ये आपको थोड़ा बहुत याद भी होगा। तो पहले x रहेगा और बाद में y, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पहले y हो जाए और बाद में x। फर्स्ट नंबर इज रिलेटेड टू x एक्सिस, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर इज रिलेटेड टू द y एक्सिस। इट इज़ क्लियर। मे बी वैल्यू आपकी कोई पॉजिटिव हो जाए, कोई निगेटिव हो जाए, बट इट डजेंट मैटर। बट पहला नंबर x एक्सिस से रिलेट करेगा, दूसरा y एक्सिस से रिलेट करेगा, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। दिस x कॉमा वाई इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। हम इसको कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, हम इसको पॉइंट भी कहते हैं और हम इसको ऑर्डर्ड पेयर भी कहते हैं। क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव अवर नेक्स्ट डिस्कशन, एंड आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जो पॉइंट्स अभी हमने देखे एक्स कॉमा वाई, इनके कितने टाइप्स होते हैं। एक्चुअली इस चीज़ का डिस्कशन कोई आपकी बुक में है नहीं। आप जब अपनी एनसीईआरटी की बुक उठा के या कोई भी और बुक उठा करके, आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, आर.डी. शर्मा, कोई सी बुक उठा करके आप पढ़ेंगे तो इस तरीके का डिस्कशन की टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट, ऐसा डिस्कशन आपको नहीं मिलेगा। ये मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए आपको और ईजिली समझ में आ जाए, बेटर समझ में आ जाए, इसलिए इस डिस्कशन को मैंने अलग से लिखा हुआ है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब उन 2 टाइप्स को देखिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे नंबरिंग में 3 है, बट ये तीसरा थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली में 2 टाइप्स के ही कोऑर्डिनेट होते हैं। कैसे कैसे? कोऑर्डिनेट्स दैट कैन बी ओनली प्लॉटेड ऑन द एक्सिस। ऐसे कोऑर्डिनेट्स जिनको सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्लॉट किया जा सके, एक्सिस पे। मैं आपको 1 मिनट के लिए बैक ले चल रहा हूँ, आप एक्सिस एक बार ऑब्जर्व कर लीजिए। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। कुछ कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक्सिस पे ही प्लॉट किया जा सकता है, और कुछ कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ इन क्वाड्रेंट्स में ही प्लॉट किया जा सकता है। तो अब हम इन्हीं की वैरायटी देखेंगे कि ये कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 2,0। 2,0 में जैसा कि मैंने आपको बोला कि पहला पॉइंट एक्स एक्सिस का होता है और दूसरा वाई एक्सिस का। तो यहाँ पे 2,0 में x 2 है और y 0 है। तो y के 0 होते ही, बहुत ध्यान से सुनिएगा, y के 0 होते ही ये कोऑर्डिनेट बन गया x एक्सिस का, और अगर x 0 होगा तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा y एक्सिस का, ठीक है। तो 2,0 y 0 हो गया, तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ का हो गया, x एक्सिस का। अब x एक्सिस की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसलिए x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का ये पॉइंट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 0,3। यहाँ पे देखिए x 0 हो गया, तो x के 0 होते ही पॉइंट कहाँ का हो गया, y एक्सिस का, ठीक है। और क्योंकि y एक्सिस वाली जो वैल्यू 3 है वो पॉजिटिव है, तो दैट्स वाई y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का ये पॉइंट हो गया। -3,0, x यहाँ पे -3 है और y क्या है, 0, तो y 0 का मतलब कि ये पॉइंट हो गया x एक्सिस का। लेकिन x की जो वैल्यू है वो निगेटिव है, तो दैट्स वाई ये पॉइंट x एक्सिस का है लेकिन उसके निगेटिव डायरेक्शन का है। एंड द फोर्थ वन इज 0,-5। तो यहाँ पे x 0 और y -5। इट मीन्स दैट कि आपका ये पॉइंट, अगर x 0 है तो पॉइंट कहाँ का हो गया, y एक्सिस का, और क्योंकि y वाली जो वैल्यू है दैट इज निगेटिव, सो इट इज़ अ निगेटिव डायरेक्शन। आई थिंक आपको मेरी ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नाउ
कोऑर्डिनेट्स दैट कैन बी ओनली प्लॉटेड ऑन क्वाड्रेंट्स। क्लियर है? कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, क्वाड्रेंट्स पे प्लॉट कर सकते हैं। अब कैसे हम ये पहचानेंगे कि कौन सा ऑन द एक्सिस प्लॉट करने वाला पॉइंट है और कौन सा ऑन द क्वाड्रेंट्स? तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ऑन द एक्सिस प्लॉट करने वाले जो क्वाड्रेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे पास, उनमें कोई एक वैल्यू 0 जरूर होती है, चाहे वो x हो चाहे y हो। एंड ऑन द क्वाड्रेंट प्लॉट करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं उनमें कोई भी वैल्यू 0 नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट्स में प्लॉट करने वाले 2, 3 दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, x भी y भी, दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। -2, 1 तो यहाँ पे एक वैल्यू निगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है, x निगेटिव है y पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट। -1, -2 दोनों निगेटिव, कहाँ पे हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। 2, -3 तो x पॉजिटिव और y निगेटिव, दैट्स वाई ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू निगेटिव होती हैं। तो फर्स्ट और थर्ड के लिए आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। अब हम आते हैं सेकेंड में और थर्ड में। सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में y निगेटिव होता है। इस अकॉर्डिंग अब आपको कोई भी कन्फ्यूज़न क्वाड्रेंट के पॉइंट्स को पहचानने में नहीं होगी। नाउ द डिस्कशन इज 0, 0 is a coordinate of point of origin। 0, 0 जो है जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं और उसका कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर नेक्स्ट टॉपिक। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू प्लॉट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे प्लॉट करें। ठीक है, तो ये चीज़ हमको सीखना है। आपके सामने देखिए एक ग्राफ पेपर बना के रखा है मैंने, और इस ग्राफ पेपर में ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिस इज स्केल। ये स्केल लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि ये जो एक बॉक्स है हम इसको कितना यूनिट मेज़रमेंट देते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू कितना लिखा, 1 यूनिट, एंड ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। मतलब कि 1 बॉक्स पे हम 1 यूनिट का गैप देते हुए चले जाएंगे। क्लियर है? देखिए दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मिल रही हैं, दिस इज ओरिजिन, ये आपका एक्स ओ एक्स डैश है, ये आपका वाई ओ वाई डैश है। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं। एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 एज वेल एज यहाँ पे हर जगह पॉइंट्स लिखे हैं। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं साइड में लिख रहा हूँ और मैं उनको प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा। देखिए जैसे कि एक पॉइंट हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में लिखा 2, 3। अब हम इस 2, 3 को कैसे प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि पहला पॉइंट हमारा क्या है, 2, मतलब ये x की वैल्यू 2 है, और दूसरा पॉइंट कितना है, 3, तो y की वैल्यू कितनी है, 3। क्लियर? अब ये x की वैल्यू जो 2 है ये पॉजिटिव है, तो x में पॉजिटिव पे 2 कहाँ पे है, ये रहा। ठीक, y की वैल्यू जो 3 है ये भी पॉजिटिव है, तो y में पॉजिटिव पे 3 कहाँ है, ये रहा। 3 से हम इधर की तरफ आएंगे, 2 से हम इधर की तरफ जाएंगे, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये 2 है और ये 3 मिला। 3 से इधर की तरफ आइए और 2 से ऊपर की तरफ जाइए, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये मिला। तो दिस इज योर पॉइंट 2, 3। एक पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, -3, 4। पहली वैल्यू x की -3, दूसरी वैल्यू y की 4,
x माइनस 3 आपको कहाँ पे मिलेगा, x एक्सिस पे माइनस 3 आपका ये रहा, और y 4 आपको कहाँ पे मिलेगा, y एक्सिस पे 4 आपका ये रहा। अब 4 से हम इधर की साइड मूव करेंगे और माइनस 3 से ऊपर की तरफ, तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी लाइंस, ये लाइंस बनी होती हैं ग्राफ पेपर में, देखिए माइनस 3 से ऊपर की तरफ ये लाइन जा रही है और 4 से इधर की तरफ ये लाइन आ रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया -3,4। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट -1, -2। अब यहाँ पे पहली वैल्यू -1 x की, दूसरी वैल्यू -2 y की। अब देखिए x पे -1, x एक्सिस पे -1 ये रहा, y एक्सिस पे -2 नीचे साइड मिलेगा, -2 ये रहा। हम इधर से इधर मूव करेंगे -2 से और -1 से इधर की तरफ, तो दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगे। दिस इज योर पॉइंट -1, -2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 3, -2 मीन्स x की वैल्यू 3 वो भी पॉजिटिव, y की वैल्यू -2 निगेटिव वैल्यू। तो x पॉजिटिव कहाँ पे मिलेगा आपको, ये रहा आपका x पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसमें आपको मिल गया ये 3, और y निगेटिव में -2, तो ये -2 रहा, तो -2 से हम इधर की तरफ मूव करेंगे और 3 से नीचे की तरफ, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएगा। दिस इज योर पॉइंट 3, -2। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 0, 3। 0,3 में x 0 हो गया, सीधे सीधे क्लियर हो गया कि पॉइंट है y एक्सिस का। क्लियर। x के 0 होते ही पॉइंट कहाँ का हो गया, y एक्सिस का, और y एक्सिस के लिए वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 3। तो y एक्सिस पे आप देखिए 3 कहाँ पे है, ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे 3 ये रहा, तो दिस इज योर पॉइंट 0, 3। तो एक्सिस के पॉइंट भी प्लॉट करना आपको समझ में आ गया। इस अकॉर्डिंग हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। आई थिंक दिस डिस्कशन इज ऑल्सो क्लियर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू ऑब्जर्व कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, क्लियर, ये हमको देखना है। अब ये आपके सामने ग्राफ है, यहाँ पे भी हमने स्केल क्या ली है, 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन द x एक्सिस, 1 बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन द y एक्सिस। क्लियर। अब हमने यहाँ पे सारी चीज़ें पहले से ड्रॉ कर रखी हैं, x o x डैश, y o y डैश, हमने 1 1 बॉक्स पे 1 1 यूनिट को आगे पीछे बढ़ाते हुए लिख दिया पूरा। ठीक है, ये फॉर्मेट हो गया। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हमने ले रखे हैं A, B, C, D, E, F, G, H, और हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, अब हम पॉइंट A को ऑब्जर्व करेंगे। ये पॉइंट A है, पॉइंट A पे आप ऐसे ब्रैकेट बनाइए। पॉइंट A से पहले आप परपेंडिकुलर ले आइए x एक्सिस पे, पहले x एक्सिस पे फिर y एक्सिस पे। ठीक है, पहले पॉइंट A से परपेंडिकुलर लाइए कहाँ पे, x एक्सिस पे, कितना मिला 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दीजिए, कॉमा। अब पॉइंट A से परपेंडिकुलर लीजिए y एक्सिस पे, कितना मिल रहा है आपको 2, कॉमा 2। योर पॉइंट कोऑर्डिनेट इज 3, 2। नाउ कम टू पॉइंट B। पॉइंट B से भी पहले x पे परपेंडिकुलर देखिए कितना आ रहा है -3, तो यहाँ पे आप पहले -3 लिखिए। फिर अब देखिए कि y पे कहाँ जा रहा है, तो y पे आया 3 पे, सो दिस इज 3। क्लियर। नाउ पॉइंट C। पॉइंट C से पहले आप x एक्सिस पे जाइए परपेंडिकुलर, तो कितना मिलेगा -2, और अब आप पॉइंट C से y एक्सिस पे जाइए, तो y एक्सिस पे जब हम गए तो कहाँ पे मिल रहा है -3, सो योर पॉइंट इज -2, -3। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर। ओके, नाउ कम टू पॉइंट D।
पॉइंट डी से भी हम पहले एक्स एक्सिस पे, इस बात को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जिस पॉइंट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे हम पहले एक्स पे जाएंगे फिर वाई पे जाएंगे। क्लियर? तो अब हम यहाँ से पहले कहाँ पे जा रहे हैं? एक्स पे। तो पॉइंट डी से अगर हम एक्स पे जाएंगे पहले तो हमें क्या मिल रहा है? 5। और अब पॉइंट डी से आप वाई पे जाइए परपेंडिकुलर, तो आपको कितना मिला? -2। सो द कोऑर्डिनेट इज 5, -2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट ई। पॉइंट ई आपको किस एक्सिस पे दिख रहा है? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे दिखने का मतलब एक्स हो गया 0। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स उसका 0 हो जाएगा। और अब देखिए कि वाई एक्सिस पे कहाँ पे है? 3 पे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3, कोऑर्डिनेट हो गया 0,3। एफ के लिए देखिए, एफ आपका कहाँ पे है? ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे होने का मतलब वाई 0 हो गया, तो कॉमा लगा करके यहाँ पे वाई को लिख दीजिए 0। अब ये देखिए कि एक्स पे कहाँ पे है? एक्स पे है ये आपका पॉइंट 4 पे, तो यहाँ पे आप 4 लगा दीजिए, तो ये हो गया 4,0। पॉइंट लिखने में पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है। अब आप आइए जी के लिए। जी में किस एक्सिस पे है? ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे वाई 0 रहेगा, तो कॉमा लगा के पहले वाई को 0 कर दीजिए। और अब देखिए एक्स एक्सिस पे कहाँ पे है? -5 पे, तो आप x की जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? -5। योर कोऑर्डिनेट इज -5,0। क्लियर? नाउ कम टू h। h क्या है आपका? ऑन द y एक्सिस। तो जब ये y एक्सिस पे है तो इसका मतलब इसकी x 0 हो जाएगा, तो हमने x को पहले क्या कर दिया? 0। अब x को 0 करके फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे? किस पॉइंट पे h है आपका? तो आपका h है पॉइंट -4 पे, तो ये हो गया है y की वैल्यू -4। सो योर कोऑर्डिनेट इज 0, -4। तो ये हमने यहाँ पे 2 तरीके सीख लिए, हाउ वी प्लॉट द पॉइंट्स, हाउ वी ऑब्जर्व द पॉइंट्स। पॉइंट्स को हम कैसे प्लॉट करेंगे ये आपने पीछे सीखा, और पॉइंट्स को हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे ये आपने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू दीज ऑल थिंग्स, our basic concepts may be clear, and now we are able to discuss our exercises. So in the next video I discuss the exercise first of your this third lesson, coordinate geometry. So watch for the next video.